Hi everyone, I am Om and I welcome you all to this video. To this segment, we will discuss about the post-market analysis. So we will discuss what happened today, what were the alerts that was given by me on my Telegram channel to all of you. Well, if you are new here, then my Telegram channel is absolutely free. The link is provided in the description box. You can join that channel. No hidden charges. It's absolutely free. And please, if you are coming to my Telegram channel for the purpose of tips and calls, then please don't come. My Telegram channel is not about providing calls and tips. It's just the platform where I share my view, where I share my opinion about market, about my intraday view of the market, and where I share my personal trades. Okay, so that platform is not at all about typical calls and tip services. All right. So yeah, let's start this video. Let's see what we can expect from the market tomorrow and day after tomorrow, which is monthly expiry. What we can expect from the market. So first of all, before starting the video, before getting into the video, see, there are a lot of things going on in the community. I would say in the share market industry, a lot of people are doing this hashtag no trading day on this day, 1st of September. कि यार नो ट्रेडिंग डे करते हैं, रिटेलर्स कोई भी रिटेलर पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो रीजन बीइंग कि सारा मार्जिन खत्म हो गया है, इंट्राडे का सारा मार्जिन खत्म हो गया. सी देखो, सेबी ने ये जो कोई भी अगर कोई गाइडलाइन निकाली है ना सेबी ने, तो वो सोच समझ के निकाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेबी ने क्या करा, सेबी ने रिटेलर्स को ट्रैप से बचाया. ठीक है, क्या ट्रैप था? मार्जिन यूज कर लेते थे, T4 का ड्यूरेशन रहता था, फिर उसके बाद लॉस में अपनी पोजीशन काट के अपने लॉस बुक करते थे. 10,000 रुपए का आपका पोर्टफोलियो है, आप उसके ऊपर 50,000 का सामान ले रहे हो, तो ऑब्वियसली बंदा वहां पे अच्छा खासा बंदे का कैपिटल घुस जाता था, काफी अच्छा खासा लॉस होता था. And let's see the other side of this coin. I would say, let's see the other face of this coin. See, instead of removing margin, SEBI could have conducted some seminars where SEBI can educate people about the option trading. Okay, where SEBI can educate people about this open interest thing or whatever the thing that matters the most as per the SEBI officials. They could have done this. They could have educate people about all these terminologies or all these technicalities. ठीक है, all these technicals I would say. See, अब आपने ऐसे कर तो दिया है, अब देखो रूल तो हो गया है. ठीक है, अब 1 सितंबर से वो स्टार्ट भी हो जाएगा. देखो, जिनका बड़ा कैपिटल है ना, जैसे कि मेरा कैपिटल है या कुछ और भी लोग हैं जिनका बड़ा कैपिटल है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा. इफ यू पर्सनली आस्क मी, मेरे को तो शायद साल हो गए इंट्राडे ट्रेड करे हुए. ठीक है, तो मैं तो इंट्राडे मार्जिन यूज कर ही नहीं रहा था, तो मेरे लिए अगर आप ये रूल लेके आ रहे हो तो मेरे को तो फर्क नहीं पड़ेगा इससे. ठीक है, यू गाइज नो मी वेरी वेल, आइदर आई ट्रेड इन द नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी. ठीक है, तो मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, तो वहां पे तो मार्जिन की बात खत्म हो ही जाती है, मैं तो मार्जिन यूज करता ही नहीं हूँ. बट द people who come to the market with the capital of just rupees 15,000 or I would say 20,000 with the hope that they will use margin, they can get leverage. देखो, अब उनके लिए तो नहीं रहा कुछ. ठीक है, टू बी ऑनेस्ट उनके लिए कुछ नहीं रहा. अगर अभी सोच के आते 10,000 का मेरा पोर्टफोलियो है, मैं इंट्राडे में 20,000 का सामान खरीद के 20 बेच दूंगा, 2-3 हजार कमा लूंगा, 2-3 हजार का जो लॉस होगा वो नहीं हो सकता. आप 10,000 लेके आ रहे हो, 10,000 का ही सामान खरीद सकते हो, उससे ऊपर का नहीं खरीद सकते इंट्राडे में. ठीक है, सो ये चीजें अब हो चुकी हैं. अब एक तरीके का प्रोटेस्ट है ये. ठीक है, फ्रॉम रिटेलर्स की यार छोड़ दो, 1 सितंबर को ट्रेड ही मत करो, कोई भी रिटेलर ट्रेड नहीं कर. देखो, ऐसे तो होने नहीं वाला. ठीक है, ऑलरेडी काफी ऐसे होंगे रिटेलर्स जिनकी पोजीशंस ऑलरेडी रनिंग है. ठीक है, और अगर आप चाहते, अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो कोई भी रिटेलर नहीं करेगा ट्रेड, आई डोंट थिंक सो उतना फर्क पड़ेगा. ठीक है, FIIs will still pump in some money or pump out some money. DIs will still pump in or pump out their money. All the big players, I would say high net worth individuals, will still pump in and pump out their money. Retailers तो यार, they are like a peanut to market. ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा. So instead of protesting all this, I would say just accept it. ठीक है, just accept it. Gain some knowledge, get educated about the market. ठीक है, उसके बाद मार्केट में उतरो.
ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन लो। मैं कह रहा हूँ अगर आप लाख रुपए मार्केट में लगाना चाहते हो ना, देन डू वन थिंग, 50,000 पहले अपनी एजुकेशन को लगाओ। ठीक है, बहुत है बाहर कोर्सेज, 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 के मिलेंगे, लाख लाख 1.5 लाख के भी कोर्स है मार्केट में, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, सब वैरायटी के कोर्स हैं। आप जिसमें भी, जो भी आपके बजट में फिट होता है ना, आप पहले कोई कोर्स करो। ठीक है, चीजें सीखो। अगर कोर्स नहीं करना चाहते, नहीं आता समझ कि नहीं यार ये सारे लोग ऐसे ही हैं, ये पैसा ले जाएंगे, कुछ नहीं हो, ठीक है, मत करो, किसी का भी कोर्स मत करो। खुद से अपनी नॉलेज गेन करो। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में उतरो। ठीक है, ये मत सोचो कि स्टॉक मार्केट इज द इजीएस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी। अगर ऐसा होता देन एवरीवन वुड हैव बीन मेकिंग सम गुड मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ठीक है, इतना बदनाम नहीं होता स्टॉक मार्केट इंडिया में कि यार यहाँ पे लॉस होता ही होता है। ठीक है, आपके पास अगर प्रॉपर एजुकेशन है, यू कैन मेक अ फॉर्चून आउट ऑफ इट। तो धीरे धीरे इस चीज को छोड़ो। अब इस चीज, जो चीज होगी वो होगी, उसको क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा। जो रूल बन चुका है वो बन चुका है। आपके एक दिन ट्रेडिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स टोटली अप टू यू। इफ यू आस्क मी कि सर व्हाट विल यू डू, 1 सितंबर को आप क्या करोगे? सिंपल यार, अगर ट्रेड मिलेगा तो करूंगा, अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यार मैं नो ट्रेडिंग डे बनाऊंगा। मेरा तो यार कभी कभी नो ट्रेडिंग मंथ भी बन जाता है। ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट ईयर, शायद नवंबर या नवंबर का ही मंथ था, मतलब मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर मैंने कोई ट्रेड ही नहीं करा था। ऑलमोस्ट 25-30 डेज हो गए थे, मैंने कोई ट्रेड ही नहीं करा था, कोई ट्रेड मिल ही नहीं रहा था ढंग का मेरे को। ठीक है, सो चीजें ऐसे मत करो। ये जो होना था वो हो गया, इसको पीसफुली एक्सेप्ट करो। आगे क्या कर सकते हो, क्या सोल्यूशन आपके पास, वो देखो। सोल्यूशन एक ही है, गेट एडुकेटेड। ठीक है, गेन सम डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड देन एंटर द मार्केट। ऑलराइट, सो बाकी जो बाहर मार्केट में जितने भी नॉइस क्रिएट हो रही है उन सबको अवॉइड करो। ऑलराइट, सो दैट्स इट अबाउट दिस सेवी मार्जिन रूल। क्योंकि मेरे को इसके भी काफी, बहुत ज्यादा मेरे को इसके मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, क्या है सर आप कैसे इसको ले रहे हो ये। मैं कहा इस वीडियो में स्टार्टिंग में छोटी सी चीज है, पता नहीं इसके लिए तो मैंने सोचा भी नहीं कि मेरे को वीडियो क्रिएट करनी चाहिए इसके लिए, छोटी सी चीज है, मैंने ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में ही बता दिया आपको। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सो विल स्टार्ट विद दिस। Okay, so around 11:15 in the morning, I dropped this message. I dropped this message. Also, Bank Nifty at 35,450. Okay, so first of all, let's open Bank Nifty. By the way, Bank Nifty was stronger than Nifty today. So I I prefer trading. I अगर मैं लेता ट्रेड ना, अगर if given a chance, then obviously मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता, बट मेरे को मिला ही नहीं मौका। ठीक है, ऑलराइट, सो 11, 11:15 के आसपास मैंने मैसेज डाला था। सो हियर इट इज, ये रही वो कैंडल। ठीक है, सो 13,450 का मैंने बोला था, तो मेरे को दिख रहा था कि 13,450 ब्रेक हो ही जाएगा, तो ब्रेक हो गया 13,450 उसके बाद। ठीक है, वी गॉट गुड क्लोजिंग। 30, ये जो एक क्लोजिंग है ये भी आप देख सकते हो, लगभग 450 पे ही क्लोज हुआ ये भी। अगली क्लोजिंग 450 के ऊपर, तीसरी क्लोजिंग 450, फिर उसका ब्रीच हो चुका है। गुड कैंडल्स के साथ ब्रीच हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि कोई वीक कैंडल्स है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ ब्रीच हो गया था 450। उसके बाद एक ये ऊपर का लेवल था। ठीक है, तो मैंने लिया ही नहीं ट्रेड। मैं कहा यार एक ये छोटा सा तो टारगेट है, इसके लिए मैं क्या ही ट्रेड लूँ। ठीक है, सो मैंने लिया ही नहीं ट्रेड। अच्छा, रीजन बीइंग, कुछ लोग पूछते हैं कि सर आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स को मिस कर देते हो, हम लोग तो कर लेते हैं ट्रेड। देखो, आप लोग ट्रेड करते हो, ठीक है, मैं ट्रेड करता हूँ। मुझे हर एक ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट नोट अपनी फाइल में लगाना होता है। ठीक है, मेरी प्रॉपर बुक कीपिंग होती है मेरी ट्रेडिंग की। ठीक है, मैं आईटीआर पे करता हूँ। तो उसमें ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में 8% से नीचे का प्रॉफिट शो करता हूँ, ठीक है, और 2 करोड़ से ऊपर अगर मेरा प्रॉफिट चला जाता है, ठीक है, तो उस केस में मेरी ऑडिट होती है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू safeguard myself from all the audit fees and all these legalities, मैं ऐसे छोटे ट्रेड्स नहीं लेता। ठीक है, आप ले सकते हो, आप ले सकते हो, मेरे अलग रीजंस हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अब उस लेवल पे ट्रेड नहीं करता जिस लेवल पे आप लोग करते हो। मैं भी किया करता था जिस लेवल पे आप लोगों, मैं भी था उस लेवल पे, मैं भी वहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, बट धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होती गई, तो आज की डेट में मेरा काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। ठीक है, मेरे मल्टीपल पोर्टफोलियोज हैं।
ये ऐसा नहीं कि मेरा एक पोर्टफोलियो है, मेरा कम से कम भी नहीं तो एक ब्रोकर के साथ मेरे 3-4 पोर्टफोलियो है, एंड करेंटली आई एम हैविंग 5 ब्रोकर्स। ठीक है। सो मेरे को सारी चीजें मैनेज करके चलनी पड़ती है, इसलिए मैं छोटे छोटे ट्रेड्स नहीं लेता। आप ले सकते हो, मैं अपना व्यू प्रॉपर फिर भी शेयर करता हूँ। अगर आप इन वॉइस नोट्स को पढ़ो, मैं अपना व्यू फिर भी शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं आपको कभी नहीं रोकता ये छोटे छोटे टारगेट्स लेने से, मैं आपको कभी नहीं रोकता। मैं सिर्फ आपको तब रोकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मैसेज ड्रॉप करा था, वो आगे आगे बात करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, मैंने बताया था इसके वॉइस नोट में। मैं सिर्फ आपको तब रोकता हूँ जब मेरे को दिखता है कि यार यहाँ पे ना शायद कोई ट्रैप है, यहाँ पे शायद लॉस हो सकता है, मैं सिर्फ उस जगह पे रुकता, नहीं तो मैं नहीं रुकता। ठीक है। सो आई होप आपको ये भी रीजन पता चल गया। इसके भी काफी डाउट है कि सर आप ये छोटे छोटे टारगेट्स क्यों नहीं लेते हैं, इनमें भी काफी प्रॉफिट है। लो ना, मैं नहीं लेता, मेरा अलग रीजन है, बता दिया मेरा क्या रीजन है। मेरे को 8% से ऊपर प्रॉफिट शो करना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा, अगर मैं घुसता हूँ मार्केट में तो अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ घुसता हूँ। और निफ्टी पे अगर आप जानते हो तो काफी, निफ्टी के पहले अगर हम 2500 लॉट 2800 लॉट पंच इन करते थे, तो अब वो नहीं कर सकते, 1400 कर सकते हैं। तो एक तरीके से मेरी ब्रोकरेज भी डबल होगी, जहां मेरी ब्रोकरेज से महीने की ₹1,00,000 जाती थी, अब मेरी ब्रोकरेज ₹2,00,000 जाती है। तो सारी चीजें मेरे को मैनेज करनी पड़ती हैं। ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये एक टैक्सेशन होता है। ठीक है, अकाउंटिंग होती है आपकी ट्रेडिंग की, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, आई एग्री। आप अभी छोटे लेवल पे कर रहे हो, पर जब बड़े लेवल पे करोगे तो आपको चीजें खुद से भी पता होनी चाहिए। ठीक है। सो दिस हैपेंड इन द मार्केट टुडे। तो मार्केट ने ब्रीच करा, मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ना हॉल्ट हो गया। सो व्हाट अबाउट टुमारो, एक बार निफ्टी पे देख लेते हैं निफ्टी ने क्या करा। ठीक है। सो निफ्टी वाज आल्सो, से मैंने ये मैसेज एक ड्रॉप करा था, अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने आप लोगों को बताया था एज डिस्कस्ड इन मॉर्निंग वॉइस नोट। मैंने इस वॉइस नोट में बताया था, मैंने क्या बताया था, इफ निफ्टी मैनेजेस टू ट्रेड अबव 16,600 देन आई विल डू फ्रेश बाइंग ऑन इंडेक्स। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो ब्रेक कर लेते हैं, निफ्टी क्या करता है, निफ्टी ने ब्रेक कर देता है, निफ्टी 16,600 के ऊपर चला जाता है यहाँ पे। ये वाली जो कैंडल है ना, 16,600 के ऊपर क्लोजिंग आती है। फिर देखो दूसरी कैंडल, दूसरी कैंडल ना उतनी मेरे को स्ट्रांग नहीं दिखती, तीसरी कैंडल दिखती है मेरे को अच्छी खासी स्ट्रांग। ठीक है। बट इस टाइम पे बज गए 2:15। ठीक है, 2:15 बज चुके हैं, मतलब 2:30 बज गए थे, 2:15 की कैंडल 2:30 बज चुके हैं। मैं कहा यार 2:30 बज चुके हैं, 1 घंटे मार्केट बंद हो जाएगा, इस टाइम पे कोई पोजीशन क्रिएट करने का फायदा है नहीं। फिर मैंने बाकी और चीजें चेक करी, बाकी अदर सेक्टर्स चेक करे। सो आई केम अप विद दिस डिसीजन कि यार बीटीएसटी भी नहीं कर सकता। ठीक है, अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता बीटीएसटी का, रीजन बी डे आफ्टर टुमारो इट्स अ मंथली एक्सपायरी। सो मैंने बीटीएसटी का भी रिस्क नहीं लिया, मैंने फिर कोई ट्रेड लिया ही नहीं। ऑल्दो अगर ये सिनेरियो, ये जो आप देख रहे हो 16,600 के ऊपर जो क्लोजिंग आई है, अगर ये सिनेरियो मार्केट में 1:30 बजे के आसपास हो जाता ना, 1:30 बजे भी हो जाता या फिर पौने 2 भी, 2 बजे भी अगर हो जाता और मैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेता। बट ये हुआ ही 2:30 बजे के आसपास सिनेरियो, तो 1 घंटा बचा था, मैं कहा छोड़ो, अब कोई फायदा नहीं ट्रेड करने का। ठीक है। सो लेट्स सी अब कल का क्या प्रोग्राम है, कल क्या करना है। देखो, बैंक निफ्टी वो स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी टुडे। कल का नहीं पता कल क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज बता के जा रहा हूँ बहुत सिंपल सी, लेट मी सी सुपर ट्रेंड क्या बता रहा है। सुपर ट्रेंड ने सेल का दे ही दिया ऑलमोस्ट, चलो खैर ठीक है, इसको नेग्लिजिबल है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, ईएमए। ठीक है। सो सी दिस, I'll do one thing. इसको ना रेड कर दो। ठीक है। सी दिस इज आर नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ये जो मैंने आपको बना के दिया है ना, डार्क रेड हो सकता है क्या, यही रहने दो। सी दिस इज आर नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आ, देखो नीचे ना 200 ईएमए का सपोर्ट है, अभी इसने ना 200 ईएमए को ब्रीच करा ना 50 मिनट टाइम फ्रेम, तो नीचे आ सकता है सपोर्ट के लिए। अब लोग सोचेंगे कि यार सेलिंग आ गई, सेलिंग आ गई, नहीं, सपोर्ट के लिए आ सकता है, इसको ब्रीच करे एक बार सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जा सकता है। सो इसलिए नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर की साइड यहां तक अगर इसके ऊपर चला गया तो ट्रेड कर लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया, एक इंट्राडे व्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि ये अपना नो ट्रेडिंग जोन है, मार्क कर लो बेशक इसको। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब बात करते हैं प्रॉपर तरीके से कि मैं कब घुसूंगा मार्केट में। ठीक है,
मैं प्रॉपर, अगर आप लोग मेरे को काफी टाइम से फॉलो करते हो, मैं इंडिकेटर्स बहुत रेयरली यूज करता हूँ, बहुत रेयरली, मैं यूज ही नहीं करता इंडिकेटर्स को, ठीक है, मेरे पल्ले नहीं पड़ते। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन का बंदा हूँ, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन स्टडी करता हूँ। सो मुझे मेरा प्राइस एक्शन सिंपल सिंपल बता रहा है, सी, इफ if bank nifty is opening above this level, is opening somewhere around here, अगर यहाँ कहीं बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, ठीक है, और पहले 15 मिनट में, 15-30 मिनट में दिख रहा है यहाँ से लेके ऐसे बाउंस ले रहा है, या फिर यहाँ ऊपर ट्रैवल करना चालू कर दिया है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में ही देखूंगा, जैसे ये ऐसी एक रेंज क्रिएट हो जाएगी, जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा, मैं यहीं पे अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन कर दूंगा इसी जगह पे, ठीक है, मैं यहीं पे घुस जाऊंगा मार्केट में। दूसरा सिनेरियो, मैं कब घुसूंगा मार्केट में, जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से सीधा सीधा बाइंग आ रही है, सीधा सीधा पहले 15 मिनट में ही बाइंग आ गई, पहले 5 मिनट की कैंडल ऐसी बनी, दूसरे 5 मिनट की कैंडल ऐसी बन गई, तीसरी 5 मिनट की कैंडल ऐसी बन गई, ठीक है, तो दिख गया मेरे को कि यार ये नीचे आके रिटेस्ट लेके जा रहा है, ठीक है, काफी बुलिशनेस है, शो कर रहा है बुलिशनेस, यहाँ पे मैं एंटर हो जाऊंगा, ठीक है, तो ये है मेरा प्लान। दूसरा, मैं कब एंटर नहीं होऊंगा, वो जो अभी हमने देखा था ना, नो ट्रेडिंग जोन, अगर वहां कहीं ओपन हो रहा है, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, देन आई विल स्टे स्टॉक स्पेसिफिक, मैं अपने को स्टॉक्स पे करूंगा, जैसे एसबीआई आप लोगों को पता होगा, सीरीज मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, आई हैव एंटेड एसबीआई, सो आज एसबीआई काफी अच्छा गया, ऑल द वे फ्रॉम 408 टू 416, ठीक है, अ गुड ₹8 प्रॉफिट, मोर देन 2% प्रॉफिट ऑन एसबीआई, ठीक है। सो आई विल रिमेन स्टॉक स्पेसिफिक, मैं बीपीसीएल के अंदर भी हूँ, अभी आप लोग जानते होंगे, बहुत पुराना ट्रेड मेरा चला आ रहा है बीपीसीएल का, एसबीआई के अंदर भी मैंने पोजीशन क्रिएट कर लिया फिलहाल, ठीक है, मारुति के अंदर भी मेरी पोजीशन क्रिएटेड है, ठीक है, आई थिंक मारुति में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आई थिंक वेट लेट मी चेक, मारुति, मारुति, शायद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है मारुति में, वेट लेट मी चेक, नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं दी ना उसने, हाँ नहीं हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आई एम स्टिल इन मारुति, ठीक है। सो एनीवेज, मारुति का भी मेरा ट्रेड चल रहा होगा, सी देखो बाबा, खुद सोच सकते हो, मेरे को मेरे ट्रेड्स भी याद नहीं रहते, मैं इनको लेके जो छोड़ देता हूँ, मेरे को मेरे ट्रेड्स भी याद नहीं रह पाते, ठीक है। सो मेरा पोर्टफोलियो उस हिसाब पे बिल्ड हो चुका है, तो इसलिए मेरे को छोटे मोटे टारगेट्स में नहीं देखता, मैं उनको अवॉइड करता हूँ, ठीक है, कि मेरी ब्रोकरेज भी थोड़ी बहुत बच जाए, मैं अब एंटर भी तभी करता हूँ कि मेरी ब्रोकरेज भी थोड़ी बहुत बच जाए, और मेरे को 8% से ऊपर में प्रॉफिट हो, मेरे को ऑडिट से भी मैं अपने आप को सेव गार्ड करके चलता हूँ, ठीक है। सो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया क्या सिनेरियो है, बैंक निफ्टी का आपने प्रॉपर सिनेरियो चेक कर लिया, ऑल राइट। अच्छा, अब बात आ जाती है यहाँ पे निफ्टी में, निफ्टी में क्या करना है, देखो ये अपना ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी देर के लिए वेट करेगा ये, ठीक है, इसको सीधा भी ब्रीच कर सकता है, अगर कर देगा, अगर इसको ब्रीच कर देगा तो 16,750 एक नेक्स्ट इसके लिए टारगेट बन जाएगा, ठीक है, और 16,780 बन सकता है इसके लिए नेक्स्ट टारगेट, 16,780 पे थोड़ी बहुत इसको रेजिस्टेंस फेस करनी ही पड़ेगी। बाकी अगर मैं अपना फिब रिट्रेसमेंट लगा के चेक करूं, ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट एंड नॉट दिस वन, व्हाट यू से, गैन रिट्रेसमेंट नहीं, सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट लगा के चेक करता हूँ। सो तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स खुल के आ गए हैं, ठीक है, तो पहले तो यहाँ दिखा रहे हैं 820 पे, 825 के आसपास, ओके, फिर यहाँ, फिर ये तो ऊपर बड़े टारगेट्स आ गए, ठीक है, तो यहाँ लगा लेते हैं एक लाइन, ठीक है ना, यहाँ पे एक लाइन लगा ही लेते हैं, लाइन क्यों, एक रे ही ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ओके, डन, ठीक है। सो अब क्या प्लान है कल के लिए, कल का प्लान हम देख लो ध्यान से, समझ लो प्लान को। नो ट्रेडिंग जोन अपने लिए क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, ठीक है, दिस इज आवर नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ से लेके ये, ठीक है, सो दिस इज आवर नो ट्रेडिंग जोन, इसके नीचे जाएगा, इसको एक्सटेंड कर दो यार, इसको ना यहाँ कर दो, ठीक है, हाँ, इसके नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, ये आपको पता ही है, आप लोग अच्छे से जानते हो, ये दिन हमने कितना बढ़िया मस्त पैसा बनाया 23 अगस्त को, ठीक है, अच्छा खासा पैसा बनाया था 23 अगस्त को, ठीक है,
ये बढ़िया हो गया। अब वापस वही सिनेरियो हो जाएगा अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। अगर इसके नीचे आ जाता है, शॉर्ट कर देंगे, नीचे आ जाएगा लगभग यहाँ तक का, तो टारगेट कहीं नहीं गया, 16,500 तक का टारगेट कहीं नहीं गया, ये मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर जा रहा है, पहला टारगेट ये रहा, इसको ब्रीच कर दिया, दूसरा टारगेट ये रहा। और ये नहीं कि इसको एक सिंगल शॉट में पहुंच जाएगा, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, धीरे धीरे करके चला जाएगा। ठीक है, सो आपके सामने मैंने लेवल्स बता दिए कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। सेकेंडली, IT stocks continue to outperform. Seriously, IT stocks are doing really very great. Trust me. मतलब क्या मजा आ जाता है देख के। इफ यू गाइस रिमेम्बर, मैंने शायद आज से 2-3 महीने पहले ना अपनी वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर मेरे को दिखेगी ना वो वीडियो, वो पार्ट जो होगा, मैं उसको कट करके कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में शो करने की। मैंने बोला था कि मार्क माई वर्ड्स, फाइनेंशियल ईयर 2022 इज द ईयर where IT stocks will yield you extraordinary profits। मैंने ये चीज बोली थी कि आईटी सेक्टर को चिपक के रहो, आईटी सेक्टर के साथ बहुत पैसा बनाओ। सीरियसली बहुत ज्यादा पैसा बना लोगे अगर आईटी सेक्टर के साथ चिपक के रहे। एंड सी व्हाट हैपनिंग, सी दिस। मैं आपको पहले निफ्टी आईटी का वो शो करता हूँ, इंडेक्स शो करता हूँ, क्या देख के मजा आ गया। सी दिस, कितना मजा आ गया। मैंने ये शायद यही वो दिन होगा जहाँ पे मैंने बताया था जून के आसपास। ठीक है, जून में ही मैंने ये स्टेटमेंट दे दी थी। ठीक है, और दूसरा, अगर मैं आपको स्टॉक्स दिखाऊं तो कुछ स्टॉक्स आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, जैसे कि उनमें से एक है नौकरी। ठीक है, यू गाइस नो दिस। ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, मैंने बोला था उठा लो, लॉस होगा मैं अपनी जेब से दे दूंगा। नौकरी कंटिन्यूज टू आउट परफॉर्म। टीसीएस, हर कोई जानता है टीसीएस को, तो हर कोई जानता है, अच्छे से जानता है कि हाउ बुलिश ओम शर्मा वाज ऑन टीसीएस। ठीक है, हर कोई जानता है इसको। टीसीएस कितना बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है आज भी। ठीक है, एचसीएल टेक देखो, एचसीएल टेक बहुत बढ़िया चल रहा होगा, एचसीएल टेक भी। सीरियस। सो सारे मेजर मेजर, अब लोग क्या करते हैं ना, लोगों का, लोग देखते हैं छोटे छोटे स्टॉक्स, जो 200 रुपए का कोई स्टॉक बता दो, 50 रुपए का, 100 रुपए का स्टॉक बता दो, हम उसमें पैसे यार ले आओ। कोई आईटी स्टॉक 50-100 रुपए का बता दूंगा, कोई है ही नहीं ढंग का 50-100 रुपए का आईटी स्टॉक, कैसे बताऊं। ठीक है, मैं तो बस यही बोल सकता हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं कि सर क्या क्या बताओ कि किस में इन्वेस्ट करें, बताओ। जैसे मेरे रिलेटिव्स भी होते हैं ना, कभी कोई फैमिली गेट टुगेदर होता है, तो वो मैं बता ना कि किसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली से इसके यार, आईटी सेक्टर, कोई भी बढ़िया स्टॉक उठा लो जो आपको पसंद है, बढ़िया से कोई भी एक स्टॉक उठा लो और उस पर टिके रहना। ये बोलता हूँ कि आपको जैसी, जब नेक्स्ट ईयर आएगा ना, स्टार्ट होगा जैसे नेक्स्ट ईयर जनवरी फेब मार्च, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे आपको। कोफोर्ज चेक करो, कोफोर्ज के अंदर आउटस्टैंडिंग रैली है ये कोफोर्ज में, तो मैं इसको आज से नहीं, बहुत टाइम से मेरे पोर्टफोलियो में, ये यहाँ से मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा था। सी, सी दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, इफ यू हैव सम पेशेंस, देन ट्रस्ट मी, योर मनी विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो पेशेंस होना चाहिए। मार्च से होल्ड कर रहा हूँ मैं उसको, एंड ऑलमोस्ट 90% का मेरे को गेन हो चुका है। ठीक है, मार्च से होल्ड करता हूँ। सो वही है, आईटी स्टॉक्स काफी अच्छे रहेंगे। मैं स्टिल, मैं अभी भी बोलूंगा आईटी स्टॉक्स को डाल के रखो। अच्छा, दूसरा, वन ऑफ माय फेवरेट, बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक मैंने बीएससी, हाँ बीएससी ओपन कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा, here it is। बैंक ऑफ बड़ौदा, लोग बोलते हैं कि ये तो अभी भी नहीं चल रहा। स्टिल से मेरी अब आज भी वही स्टेटमेंट है, लेट वर्ल्ड सेल बैंक ऑफ बड़ौदा, ओम शर्मा विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, मैं आज भी यही बोलता हूँ, बेचो आप, मैं मना नहीं कर रहा, बेचो, मैं खरीदूंगा। आपको दिखे, आपको ये अचानक से दिख रहा है, ये जो आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, अचानक से दिख रही होगी कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, टेक इट एनीवे, टेक इट एनीवे। आपको जैसे लेना है वैसे समझो इस चीज को, चाहे ये समझ लो कि ओम शर्मा ने पंप कर दिया मनी, जैसे समझना समझ लो। नीचे नहीं गिरने दूंगा इसको। ठीक है, ट्रस्ट मी, नीचे नहीं गिरने दूंगा इसे।
बैठा हूँ, बहुत मोटी क्वांटिटी डाल के बैठा हूँ उसके ऊपर, बहुत मोटी होल्डिंग्स है मेरी अभी इसके ऊपर, ठीक है। और इस पे तो मैं अपने ये इंडिकेटर्स लगा के भी नहीं चेक करता, दो दो सम ऑफ माय इंडिकेटर्स आर कस्टम मेड, ठीक है, मैं फिर भी उनको लगा के चेक नहीं करता इस पे। मुझे पता है मेरा इसके ऊपर बहुत अलग चल रहा है, इस पे मेरा हिसाब किताब, मैं इसको नहीं जाने दूंगा इतनी आसानी से, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। देखो मेरी पेशेंस नेक्स्ट लेवल है, आपकी पेशेंस कैसी है वो आप लोग जानते हो, मैं नहीं जानता। मेरी पेशेंस नेक्स्ट लेवल है, आप लोग की जैसी होगी वो आप लोगों को पता है, ठीक है। सो नीचे जा रहा है, जाने दो, अगर आप लोग घबराओगे कोई बात नहीं, सेल करोगे ना आप लोग, बाय मैं कर लूंगा, सेल करो, बाय मैं करूंगा। मैं नहीं कर रहा सेल इसको, मैं जब करूंगा बता दूंगा, ओपनली आके बताऊंगा। और आज भी बता देता हूँ, आने वाले 2-3 साल बाद ना बैंक ऑफ बड़ौदा इतना प्रॉफिट दे जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। आने वाले 2-3 साल में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ये स्टॉक है, इस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। बहुत ज्यादा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और जब से गवर्नमेंट ने भी ग्रांट्स प्रोवाइड करे हैं तब से तो बहुत अच्छे इनके फंडामेंटल्स हो चुके हैं, इंटरेस्ट में विल गो बॉन्क, ठीक है। ये एक इट से एक ये मल्टी बैगर बन सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। सो ऑल राइट, आई थिंक इनफ चिट चैट्स डन फॉर टुडे। पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी मैंने आपको बता दिया क्या करना है, एंड दैट हैशटैग नो ट्रेडिंग डे का भी मैंने आपको बता दिया, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जैसे भी आप सेबी ने कोई अगर रूल निकाला है तो वो सोच समझ के निकाला होगा, ऐसे कोई भी रूल नहीं निकाल देता सेबी भी, ठीक है। So alright, I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Have a happy trading week. And अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो you'll be successful in your life. Bye bye guys.